Today is very important session because we are going to learn the advanced security or for CCNA security. Okay, it is all about CCNA security. Already we have done multiples of labs and multiples of sessions on CCNA, but right now we are going to learn the advanced security labs. Okay, according to CCNA security syllabus or CCNP, right? तो ये एक बहुत एडवांस लेवल का सिस्को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम है। इसका एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन है जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में समझते हो। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांस सिक्योरिटी लैब। ओके, lab and theory everything, and basically we are going to discuss about DSCP snooping. Okay, DSCP snooping. So anyone heard about DSCP snooping? What is DSCP snooping? Anyone? So basically DSCP snooping is a security feature, for layer 2 devices, and not for layer 2 like आप बोल सकते हो कि it is for layer 2 layer 3. ओके, ये कहीं के लिए भी हमारा क्या हो सकता है, एक सिक्योरिटी फीचर, हमारे नेटवर्क का एक सिक्योरिटी फीचर है। बट वी आर गोइंग टू आर most of cases we can apply the DSCP level configuration for local area network. Okay, like for example, if multiple switches are connected in our network, are available in our network, and there are thousands of clients available. Okay, so we can configure DSCP to provide dynamic IP address to the all clients. Okay, to all clients. Okay, means dynamic IP address through DSCP. So it provide automatic IP address, automatic IP. For example, अब ये यूज़र हमारे किसी एक राउटर से DSCP ले रहा है, हो सकता हो कि ये हमारा किसी अनदर राउटर से कनेक्ट हो या किसी अनदर लाइक इंटरनेट पर कनेक्ट हो, ये सारी चीज़ें। So, according to DSCP snooping, how we can protect a DSCP level request or DSCP level traffic over a network? Basically, DSCP snooping protect DSCP level traffic over a network. Simple. It avoid the rug level of request. Okay, और बोल सकते हो कि लाइक अनट्रस्टेड DSCP सर्वर रिक्वेस्ट और DSCP ऑथेंटिकेशन इन अ डोमेन। अब ये अनट्रस्टेड क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल दीज ऑल क्लाइंट्स रिक्वायर्ड एन आईपी एड्रेस फ्रॉम DSCP सर्वर। सो एवरी क्लाइंट और क्लाइंट लाइक क्लाइंट क्या करता है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्लाइंट कैन कन्फिगर द आईपी एज पर ऑप्टेन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, right? And whenever user trying to obtain an IP, user send DSCP discover message. User send DSCP discover message. Okay. And what about DSCP discover message? Can anyone explain about DSCP discover message? Okay. Let me explain. DSCP discover means it is a first message which is done by, or which or particular message done by client side. Okay, means ये client side द्वारा भेजा जाता है या किया जाता है to discover the server. DSCP discover message helps to discover DSCP server, and while discovering, how our client determine or how our client confirm that the specific server is our server or any intruder server? Getting my point? हो सकता हो कि हमारे पास एक let me explain through a topology. For example, this is a router 1, R1, and this is switch,
and these are the clients. Okay, these are the clients. For example, this is PC1 and 2, 3 and 4. And there is another switch in our network. For example, this is another switch, and there are multiples of clients available in our network. Okay. And for example, particular R1 router connected with ISP, it may be Geo, Airtel, whatever. Okay, this is ISP or internet. So these users can send the traffic to the or for the internet using R1 router. Means R1 is the gateway to send and receive the traffic from inside to outside or outside to inside. Okay. So these clients like 5, 6, 7, and 8 client can communicate on internet using switch 1. So this is the connection switch 1 or switch 2. ऐसा भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. ओके, इस तरीके से. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, फॉर एग्जांपल, there is another, let me connect another like intruder. Oh, sorry. Red color for intruder. Okay. This is intruder router or like rug DSCP or untrusted or not trusted DSCP or intruder DSCP. ओके, ये भी मान लिया कोई ऐसा वो है. एंड this is the trusted DSCP. For example, this is our trusted or known DSCP, right? So whenever client request or send discover message, whenever client send discover message done through broadcast IP. ये किसके थ्रू होता है? Broadcast IP. And what is the broadcast IP address? 255, 255, 255, 255. This is the broadcast IP for DORA or for Discover, the DSCP server. और ये मैसेज जनरेट किसके द्वारा होता है? क्लाइंट साइड द्वारा. सो client have no idea at that time, client have no idea that which one is real DSCP server, or from where we need to connect, or sorry, from where we need to collect or connect for DSCP. क्लाइंट तो अननोन है भाई, इसको नहीं आइडिया है. देर इज नो एनी आइडिया टू द क्लाइंट कि भाई ये रिक्वेस्ट अगर भेज रहा है तो ये स्विच को भेजेगा. स्विच के पास ये भी है, ये भी है, तो स्विच ये क्या होता है? दिस इज द ब्रॉडकास्ट मैसेज. सो वाइल ब्रॉडकास्टिंग एवरी डिवाइस ओवर अ नेटवर्क रिसीव द इंफॉर्मेशन और रिसीव द पैकेट्स. क्या करता है? हर डिवाइस रिसीव करता है. ओके. सो ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा. अब ये जो राउटर है इससे मुझे डीएससीपी मिलना चाहिए था, बट इन केस डीएससीपी ये वाला राउटर या रग राउटर मींस हैकर का ये राउटर मान लिया, दिस इज द हैकर राउटर और हैकर नेटवर्क. एंड फॉर एग्जांपल दिस राउटर असाइन एन आईपी एड्रेस टू दिस क्लाइंट. इज इट पॉसिबल? यस, इट में पॉसिबल, ये हो सकता है. ये कॉन्फ़िगरेशन या कोई ऐसा राउटर जो कि एक इंट्रूडर की तरह है या एक तरीके का अनट्रस्टेड राउटर है ना, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. और वेन एवर क्लाइंट गेट आईपी एड्रेस फ्रॉम द अनट्रस्टेड और राउटर, राउटर कैन एक्सेस एवरीथिंग अबाउट client machine. Means there is the like
बिग सिक्योरिटी लूप बोल सकते हैं या लूप होल बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूप होल है ये। कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो क्लाइंट को क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आईपी उसको असाइन होता है, क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या पैकेट भेज रहा है, डीएस लाइक इंट्रूडर कैन मॉनिटर, ओके, intruder can monitor complete traffic. So as per this scenario, DSCP snooping is a security feature on a network switches that protect against unauthorized DSCP server and malicious traffic by validating and filtering DSCP messages, right? So whenever we have DSCP snooping configuration in our network devices, so yes, we can protect DSCP request or DSCP traffic. We can validate DSCP traffic. We can filter DSCP traffic with legitimate router. Okay. हम क्या कर सकते हैं, अपने डीएससीपी की ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। मींस वी कैन डिसाइड, आर नेटवर्क एडमिन कैन डिसाइड कि ये जो पीसी वन है ये डेटा जब भी पास करेगा तो ये किसको देगा, आर वन को देगा या इस इंट्रूडर को देगा। वी कैन डिसाइड थ्रू डीएससीपी स्नूपिंग। ओके, सो वी कैन say that particular DSCP snooping protect DSCP level traffic over a network. Okay, it work by classifying port as trusted, means specific. This port will be, or this port is or will be a trusted port, and this one is untrusted port. So we need to configure two things. First one, trusted port and untrusted port. Okay. So we can configure trusted port for that particular port where our DSCP router connected, where our DSCP server connected. जहां हमारा DSCP सर्वर कनेक्टेड है उस पोर्ट पर हम क्या करेंगे, एज अ ट्रस्टेड इनेबल कर देंगे, एंड रेस्ट ऑल वी कैन इनेबल एज अ untrusted. Okay, so there is two concept. One is trusted and another one is untrusted. Trusted for legitimate server. We can identify, we can inform these devices to send the request for server. Sorry, request for DSCP IP for server. Okay, okay, sorry, to server. हम क्या करेंगे, we can configure, we can apply the setting अकॉर्डिंग टू डीएससीपी स्नूपिंग, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा हमारा जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारे सर्वर को। अनट्रस्टेड जो हमारा होगा वो रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं कर पाएगा, मींस दिस पोर्ट विल बी ब्लॉक्ड। ये क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा आफ्टर डीएससीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओके, and also we can building, sorry, we can are in DSCP snooping building a binding table of validate or valid IP to MAC address lessons, okay, and dropping invalid message from untrusted port, means हमारा जो ARP बनेगा ना, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन, ओके, या बोल सकते हैं कि जो हमारा एआरपी टेबल बनता है आईपी और मैक का, वो भी क्या होगा, एड्रेस लीज का, वो भी एक परफेक्ट बनेगा, बेटर बनेगा, और किसी भी तरीके से अनट्रस्टेड का जो पैकेट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा वहां पर। तो एक तरीके का ये लेयर टू की सिक्योरिटी हम यहां पर मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, सो एट अ फाइनल आंसर for DSCP snooping is used to prevent unauthorized rug और अनऑथराइज या ये दोनों एक ही है, सिनोनिम ऐसा बोल सकते हो, डीएससीपी सर्वर फ्रॉम असाइनिंग आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क, राइट। तो किसी भी
अनट्रस्टेड डीएचसीपी सर्वर द्वारा हमारे क्लाइंट को आईपी ना मिले, इस कंडीशन के लिए हम लोग डीएचसीपी स्नूपिंग जैसा कॉन्सेप्ट लेयर 2 इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, हाउ इट वर्क, बेसिकली इट वर्क इन मल्टीपल स्टेप्स। ओके, ये क्या करता है, बहुत सारे स्टेप्स में वर्क करता है। बेसिकली स्विच, लेट मी क्रिएट अ टोपोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 मिनट, लेट मी ओपन अ टोपोलॉजी। एक रियल लाइव टोपोलॉजी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सी। ओके, देखो, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास एक लैब है, और इसमें हमारे पास क्या है, ये रग डीएससीपी है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल दिस इज आर रग डीएससीपी सर्वर। ओके, और अनट्रस्टेड डीएससीपी सर्वर। ओके, एंड दिस इज द ट्रस्टेड। So we can configure different network ID, or we can configure same network ID. It depends कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें क्या हैं, उस पर हम इसको मैनेज करेंगे। बट यहाँ पर क्या कर रहा है कि इन केस अगर हमारा पीसी ये वन कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो ये इस स्विच को जाएगा और इधर भी जाएगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर भी जाएगा, इस स्विच से इधर भी जाएगा, और सभी को ब्रॉडकास्ट मैसेज नेटवर्क में रिसीव होगा। तो हमें क्या करना है, इसको इस पोर्ट को एज अ अनट्रस्टेड पोर्ट बनाना है, और इसको एज अ ट्रस्टेड पोर्ट बनाना है। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू कन्फिगर DSCP स्नूपिंग, बाई डिफॉल्ट आफ्टर कन्फिगरेशन ऑफ DSCP स्नूपिंग, all port will be untrusted port. Means particular client have no chance to get any IP address from this server or this server. दोनों DSCP से ये आईपी नहीं लेगा जैसे हम DSCP स्नूपिंग इनेबल करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑल पोर्ट विल बी अनट्रस्टेड पोर्ट। ओके, कुछ पॉइंट्स ये सब इंटरव्यू के होते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा ट्रस्ट ये अनट्रस्टेड सारे हो जाएंगे, आफ्टर untrusted or DSCP snooping, we need to make this port as a trusted port. So we need to configure manual okay configuration to create a trusted port for DSCP request. ओके, ये सारी चीजें। तो हम लोग यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अभी बहुत लंबा चैप्टर है, इसके बाद इसको ना ही किसी भी CCNA, CCNP, CCI, CCA कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर ये सारी डिवाइसेस का एक कॉन्फ़िगरेशन पैनल मैंने ओपन कर रखा है। तो DSCP क्या करेगा, एक तरीके का स्विच, ट्रस्टेड स्विच मीन स्विच मॉनिटर। स्विचेस का वर्क क्या होता है, स्विच मॉनिटर DSCP ट्रैफिक और DSCP मैसेजेस लाइक डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड
acknowledgement. Okay. And as per the requirement or as per the DSCP snooping switch, make trusted port or untrusted. दो कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, एक ट्रस्टेड और एक अनट्रस्टेड. ट्रस्टेड पोर्ट कैन सेंड गले में दर्द हो रहा है. ओके. So trusted port can send DSCP server responses. Okay. An untrusted port cannot send DSCP message or cannot like listen DSCP message. उसको पता ही नहीं चलेगा, DSCP उधर जाएगा ही नहीं. ठीक है. So due to this, we can stop the RUG DSCP server from giving wrong IP addresses. Okay. And we can prevent DSCP starvation attack. There is DSCP starvation attack. DSCP starvation. Okay. And as per DSCP starvation attack, attacker consume all available IP addresses. Okay. क्लियर है. इसमें क्या होता है, डीएससीपी या सॉरी अटैकर जो है वो पूरे आईपी एड्रेसेस को कंज्यूम कर लेता है. क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। ओके. तो डीएससीपी स्टारवेशन अटैक हमारा क्या होता है कि वेयर एन अटैकर कंज्यूम ऑल आईपी एड्रेसेस. सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ 1 मिनट में पानी पी के आया. ओके. तो द मेन फंक्शन ऑफ DSCP snooping are there are multiple work by DSCP snooping. Okay. It allow only legitimate DSCP traffic or DSCP server. Second point you can answer like block, rug, DSCP, and keep inter switch trunk trusted in between this. ठीक है. ये क्या है, एक तरीके का जो भी इंटर स्विच है, ट्रंक है, ये क्या होगा, ट्रस्टेड होगा एंड लेजिटमेट सर्वर रिप्लाई. ओके. एंड वी कैन मॉनिटर एंड मैनेज DSCP पैकेट्स और ट्रैफिक्स. ओके. एंड बेसिकली ओवरऑल वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम DSCP अटैक. ओके. हम लोग क्या कर सकते हैं, DSCP अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं.
जब भी हमारा ये चीज़ मेंटेन होगा तो साथ में हमारा क्या होगा, जो भी एआरपी टेबल होता है ना, डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एक और अगर हम लोग देखें तो डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन विच इज डीएआई, डायनेमिक एआरपी inspection. Okay, so what is dynamic ARP inspection? Basically it prevent, अब भाई जब डीएससीपी रिक्वेस्ट आएगी, इनको आईपी मिलेगा, इनको आईपी मिलेगा, आईपी और मैक के एड्रेस आपके स्विच के अंदर, आईपी मैक टेबल के अंदर या कैम टेबल के अंदर स्टोर होंगे, जिसके अंदर आईपी होगा, मैक एड्रेस होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, तो डी ए आई मीन्स डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन, यानी कि हमें एआरपी का इंस्पेक्शन यहां पर होता है, निरीक्षण। ओके, एंड दिस इंस्पेक्शन प्रिवेंट एआरपी स्नूपिंग, स्नूपिंग और एआरपी पॉइजनिंग। ओके, इसका मैं अटैक कराऊंगा, दिखाऊंगा। बट सीसीएनए वाले एक दो दिन में, 4 दिन में खत्म कर लें अपना, फिर जब दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो एआरपी स्नूपिंग या पॉइजनिंग को भी ये क्या करता है, सिक्योर करता है या प्रोटेक्ट करता है। ओके, वेयर एआरपी स्नूपिंग और पॉइजनिंग, वेयर प्रिवेंट फ्रॉम एआरपी पॉइजनिंग, वेयर अटैकर सेंड फेक एआरपी मैसेज, राइट। अभी क्या होगा कि इन केस अगर डीएससीपी स्नूपिंग, सॉरी पॉइजनिंग या स्नूपिंग अटैक होता है, तो उसमें क्या करता है कि बहुत सारे फेक डीएससीपी, सॉरी मैक और आईपी के एड्रेसेस या मैसेजेस एआरपी के भेजे जाते हैं टू इंटरसेप्ट द ट्रैफिक। इनका पर्पस क्या होता है, टू इंटरसेप्ट द ट्रैफिक। ओके, अब मान लिया कि कोई भी, अब मान लिया कि इस स्विच के पास बहुत सारा, मान लिया इस पीसी का आईपी है और इसका मैक एड्रेस है, इसका आईपी और इसका मैक एड्रेस है। अब स्नो डीएससीपी स्नूपिंग, या फिर बोल सकते हैं कि एआरपी, सॉरी एआरपी स्पूफिंग या फिर एआरपी पॉइजनिंग में मल्टीपल्स ऑफ अटैकर क्या करता है, फेक एआरपी के मैसेजेस भेजता है, और जिसकी हेल्प से वो ये चाहता है कि जो भी एआरपी की ट्रैफिक है वो इंटरसेप्ट की जा सके, या ट्रैफिक को इंटरसेप्ट किया जा सके नेटवर्क के अंदर। ओके, सो यहां पर अगर हम लोग डीएससीपी स्नूपिंग और ये सब मेंटेन करते हैं ना, तो डीएससीपी स्नूपिंग टेबल, सो अकॉर्डिंग टू डीएससीपी स्नूपिंग टेबल, टू वेरीफाई आईपी टू मैक बाइंडिंग। ओके, ये क्या करता है, ये डी डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन रिले होता है। ओके, एआरपी, सॉरी डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन जो हमारा है, ये डीएससीपी स्नूपिंग के ऊपर एक तरीके का रिले होता है, और वेरीफाई करता है आईपी और मैक एड्रेस की बाइंडिंग को। ओके, जिसमें क्या होता है कि स्विच चेक्स एआरपी पैकेट्स ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट। इसमें स्विच क्या करता है, एआरपी पैकेट्स को चेक करता है, जिस कहां पर, अनट्रस्टेड पोर्ट पर। ओके, और अगर वेयर स्विच चेक और चेक्स एआरपी पैकेट्स ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट if ARP request or reply, okay, matches
ये क्या होता है, डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन में हमारा एआरपी क्या करता है, चेक करता है ऑन बिहाफ ऑफ डीएससीपी स्नूपिंग टेबल आईपी मैक बाइंडिंग। और उसमें क्या होता है कि अगर हमारा रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैच होता है डीएससीपी स्नूपिंग टेबल के अंदर तो फिर अलाउ करता है। अगर मैच नहीं हुआ है एआरपी टेबल के अंदर तो वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सो दिस वे इट प्रोटेक्ट होस्ट फ्रॉम मैन इन द मिडिल अटैक। ओके, एंड ऑल्सो इट इंश्योर ओनली वैलिड एआरपी मैसेजेस are propagated over a network, right? So this is done, we can done this particular lab under local area network or in local area environment, means or layer 2 level security, because on layer 2 we can maintain, or on access layer we can maintain IP MAC binding whatever TSCP and all, right? ये सारी चीजें हम लोग इधर करते हैं। तो अब अगर हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएं कि भाई नहीं, अब एक काम करो, इसको ट्रस्टेड बनाओ और इसको ट्रस्टेड रूट बना, ट्रस्टेड रूट, सॉरी पोर्ट में डाल दो और इसको अनट्रस्टेड पोर्ट में डाल दो, हाउ इज इट पॉसिबल? और इसकी ट्रैफिक मॉनिटर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो, मैं राउटर 1 को इधर करता हूँ, ये हमारा राउटर 1 है जो कि रूट है, और यहाँ पर अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। एज पर डायग्राम यहाँ पर चलते हैं। सो यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर, ओके, ऑन आर राउटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कहाँ पर, अपने सभी राउटर पर, जिस भी राउटर पर हमारा डीएचसीपी चल रहा है, ओके। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर ऑन R1। तो मैं यहाँ पर इंटरफेस चेक कर लूँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इंटरफेस E0/0, यू कैन सी E0/0 10.0.0.1 कन्फिगर है, जो कि हमारा E0/0 10.0.0.1 यहाँ पर कन्फिगर है। क्लियर है? ओके, डन। और मेरा जो लेजिटमेट राउटर है वो है डीएचसीपी रूट, और जो मेरा दूसरा राउटर है यहाँ पर आप देख रहे हो, रग डीएचसीपी, इसको मैंने ले रखा है, इसका नेम रखा है रग डीएचसीपी। ओके, दिस वन। And there is no IP address for this router. Okay, for example, I'm going to assign an IP address for this machine. Okay, the IP address will be 10.0.0, any IP address like interface space E0/0 IP address and 10.0.0.50, या कोई अदर आईपी आपकी हो सकती है, क्लास हो सकता है, वट एवर 255.0.0.0, नो शट डाउन। ओके, ये मैंने जस्ट एक कन्फिग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट राउटर 1 पर आते हैं, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इतना हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर DSCP। सो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर DSCP IP DSCP पूल, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ CCNA में। सो IP DSCP पूल लैन, कुछ भी नेम आप दे सकते हो, एंटर, एंड देन नेटवर्क। सो हियर आई एम यूजिंग 10.0.0.0 network with mask, and I'm going to assign default router which is 10.0.0.1, enter, and then I'm going to use default DNS which is 88888, and then done, exit, DSCP configuration has done। ओके, तो ये ऑलरेडी हमारा किसी भी नेटवर्क में डीएससीपी चल रहा होगा। ओके, अब हमें ये देखना है कि अगर कोई डीएससीपी क्लाइंट यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा है, कॉन्फ़िगरेशन से पहले ना उसको ये स्टेप मिल जाए। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच
3 एंड स्विच 4 पर क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन ईच एक्सेस स्विचेस. We can configure DSCP snooping on each access switches. Okay, so it is important to configure on each. So मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच 1, ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, और स्विच 3 एंड स्विच 4 यहाँ पर. दिस इज स्विच 3. इनेबल कॉन्फिटी होस्ट SW3 and do show IP interface brief. So all port up and there is no IP address. So I think done. And rest of all, you can just configure IP DSCP snooping. Okay, this is the simple command. By default, there is VLAN 1. By default, there is VLAN 1. If you have different VLAN like VLAN 20, VLAN 30, so you can configure DSCP snooping as per your VLAN ID. Okay, but right now I have only one VLAN, which is VLAN 1 or default VLAN. So I'm going to configure DSCP snooping for default VLAN, which is IP DSCP snooping VLAN 1. Enter. Okay, and this particular things enable DSCP snooping for VLAN 1. If you have more VLAN or any other VLAN, you can configure DSCP snooping for VLAN 20, VLAN 30 or whatever. जो भी आपके पास है वो कर सकते हो. And same thing you can configure on switch 4 as per lab. So host and SW4 and IP DSCP snooping, enter, and then IP DSCP snooping VLAN 1, enter. Okay, so it is important to configure DSCP snooping for all ports. Okay, sorry, for all switches. Okay, it will create or it will configure as a untrusted port. Okay, ये एज अ अनट्रस्टेड पोर्ट में डाल देगा. इतना कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद राउटर क्या हो जाएगा? अनट्रस्टेड पोर्ट में चला जाएगा. ओके, मींस अगर हम देखें यहाँ पर तो ट्रैफिक, अगर मैं इसकी मॉनिटरिंग करूं E0/0 की, सो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी. मेरा वायर सार्क किधर है? ये है. सो यू कैन सी देयर इज ओनली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल मैसेज. ओके, यहाँ पर क्या है? कुछ ऐसा है. और अगर मैं इस स्विच से कोई ट्रैफिक कैप्चर करूं, इसका E0 या E0/2 कुछ भी ऐसे स्पैनिंग ट्री, CDP. ओके, और इन केस अगर मैं ये वाला ट्रैफिक कैप्चर करूं E0/2, so there is spanning tree protocol only. Okay, so what will happen if if PC1 if PC1 will request a DSCP IP. Okay, let me show. This is PC3. PC3 है, PC1. This is the PC1. Okay, so what will happen? You can see मैं लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ. राइट नाउ देर इज ओनली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, DTP and CDP, but let me show IP DSCP. IP DSCP. Okay, this is PC1, this one. Okay, if this one request an IP from
sorry, from DHCP server. So what will happen? You can see this is the Wireshark where I started monitoring for E0 slash 2 port. Okay, because this PC1 send DSCP message through E0 slash 2 port. Okay, that's why I started monitoring for E0 slash 2 port. Okay, so next thing, let me request IP DSCP and I think enter. Now you can see, is there any message? So you can see this is the DSCP discover, discover, discover. I think this is only discover message. There is no offer, request, and acknowledgement. And already we have DSCP server over a network. And there is successful configuration of DSCP. But DSCP don't there is no any message for DSCP because by default after configuration of DSCP snooping, all port will be untrusted port. Okay, so we need to configure as a trust port or as a trusted port to receive the DSCP or to allow the DSCP message. Okay, for R1 only. So let me show one more thing. There is no IP address, so let me show that is there any message for router 1 E0 slash 0. You can capture E0 slash 0 for R1 and again you can check IP DSCP and you can see is there any message? No. पूरी तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर जो राउटर्स हैं, जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है ना, किसी से वो नहीं ले रहा है। बट अगर मैंने अभी जो डीएससीपी स्नूपिंग इन दोनों राउटर पर, सॉरी एक्सेस लेयर के स्विचेस, एक्सेस स्विचेस पर अप्लाई किया है, अगर मैं उसको हटा दूं सो व्हाट विल हैपन? अगर ये राउटर, अगर ये डीएससीपी है तो ये रिप्लाई देगा, ये डीएससीपी है तो ये दे देगा, है ना। जहां से भी क्लाइंट को आईपी मिलेगी वो ले लेगा। ओके, क्योंकि क्लाइंट को भाई आईपी चाहिए। ओके, उसको नहीं पता कि वो ये सही वाला दे रहा है गलत वाला दे रहा है। ओके, वो बेचा रहा है। तो अभी क्या होगा, नाउ नेक्स्ट थिंग, देर इज नो डीएससीपी। ओके, सो आई एम, ओके लीव इट एज इट इज। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मॉनिटरिंग को क्या करता हूँ, राउटर 1 मॉनिटरिंग को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट थिंग, आई एम गोइंग टू कन्फिगर, ओके, ट्रस्ट पोर्ट that lead to the real DSCP server. Okay, and the inter switch trunk. We need to configure the trust port. So we need to configure trust port on switch 3, switch 4. Okay, हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर 1 सभी को क्या करना पड़ेगा, एज अ ट्रस्ट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच 3 पर आते हैं। दिस इज स्विच 3 and as per switch 3 there is E0 slash 0 and E0 slash 1, there is two port। ओके, ये तो क्लाइंट के हैं भाई, बट यहाँ पर दो पोर्ट है जो कि E0 स्लैश 0 और E0 स्लैश 1 है, जो हमारे एक ट्रंक को अलाउ कर रहा है और एक हमारा किसको कर रहा है, DSCP राउटर को। So next thing I'm going to configure interface space E0 slash 0. So E0 slash 0 I'm going to make this port as a IP DSCP snooping trust. Simple, done. Okay. Now what will happen? You can see जैसे ही client, whenever client request an IP address, is it is possible to send the traffic through this port to R1. Okay, now it is possible, but this the same thing or the same configuration I'm going to configure on E0 slash 1. Okay, on switch 3, which is IP DSCP snooping trust, enter, and then exit. Okay, so I have done
the DSCP snooping trust configuration on switch 3, and same thing I'm going to configure on switch 4. Okay, स्विच 4 पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये E0/0 को बताना पड़ेगा ना, ट्रस्टेड में है, ट्रस्ट है। तो हम स्विच 4 पर आएंगे। ओके, एंड नो नीड टू कॉन्फ़िगर एज अ ट्रस्ट फॉर E0/1 पोर्ट, otherwise this particular DSCP or RUG DSCP can transfer DSCP IP to the client machine. So leave it untrusted. E0/1, leave it untrusted. No need to make any kind of configuration for E0/1. But it is important to configure switch 4 interface E0/0 like this port as a trust port. Okay, so E0/0 IP DSCP snooping trust, enter. Okay, now these clients and these clients can get IP address from the R1. ओके, अभी यहां से क्या किया जा सकता है, सभी क्लाइंट आईपी रिसीव करेंगे। ओके, and do not configure IP DSCP snooping trust on interface E0/1 for R2. It is very, very important to mandate. Okay, otherwise there is no like any security. RUG DSCP can attack or can hack your network. Okay, so now any DSCP server message or discover offer request acknowledgement that arrive on trusted port are dropped by uh are from untrusted port are dropped by switch. Okay, and only trusted port packets or traffics received by switch. ओके, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन इफ आई रिक्वेस्ट अ DSCP IP। लेट मी शो। अभी देखो यहाँ पर अभी तक DSCP पैकेट नहीं आ रहा था। नाउ व्हाट विल हैपन, डिस्कवर ओके, अभी नहीं ले रहा है, नो प्रॉब्लम। मुझे स्विच 3 पर आना होगा। इंटरफेस E0/0, नो शटडाउन। इंटरफेस E0/1, नो शटडाउन। एंड इंटरफेस, बस अभी तो इतना ही है। इंटरफेस रेंज एग्जिट, इंटरफेस रेंज E0/1 से 2 3, नो शटडाउन। अब देखो ये DSCP के पास क्या है, डिस्कवर मैसेज आने लगा। अभी तक नहीं आ रहा था, डिस्कवर मैसेज आने लगा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा DSCP मैसेज आ रहा है, या DSCP को, सॉरी DSCP अपडेट यहाँ तक आ रहा है। और इन केस मेरा DSCP राउटर 1 पर चल भी रहा है तो DSCP मिल जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है, कहाँ पर कुछ मिस हुआ है? DSCP कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने कर ही दिया है ना।
हम्म, enable conft interface e0/0 या सिंपल शो स्पेस IP DSCP बाइंडिंग। ओके, पूल भी कॉन्फ़िगर है, बट ये ओनली डिस्कवर मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्विच 3 पर अदर जो पोर्ट है ना, जैसे इंटरफेस 0/2 IP DSCP स्नूपिंग एंड ट्रस्ट, जो भी है, एक बार इतना करने के बाद मैं PC 1 पर आता हूँ और IP DSCP एंटर। यस, डन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक IP एड्रेस मिल गया। ओके, यहाँ पर हमारा IP रिक्वेस्ट कंप्लीट होने लगा। E0/0 पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन अगर मैं IP DSCP-R रिलीज करते हैं, सो यू कैन सी डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। बस इसी सर्वर को या इसी को मैसेज जाएगा। अगर मैं इधर इस पोर्ट पर E0/1 के लिए मॉनिटर करता हूँ, कोई ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगा। E0/1 के लिए मैं मॉनिटरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट की सब जगह जानी चाहिए। ठीक है, और मैं PC 2 को मॉनिटर करता हूँ। ओके, और ये हमारा E0/1 के लिए है। नाउ यू कैन सी IP DSCP, what will happen, there is no any message. Okay, but you can check this port, you will get a discover message or broadcast message by ARP. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रोसेस समझ में आया, हाउ टू प्रोटेक्ट? हेलो? यस सर। ओके, अब ये हो सकता है कि इन केस अगर हमारे DSCP सर्वर पर, या फॉर एग्जांपल DSCP तो मैंने यहाँ पर बना दिया, मेक श्योर कर लें हम लोग कि ये हमारा DSCP का या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस पर एक लिमिट, रेट लिमिट कॉन्फ़िगर करें। ओके, we need to configure or make sure host access port are untrusted and rate limit. Rate limit means we can configure limit of request per second. Okay, it will protect from unauthorized flood level attack by intruder in DSCP environment or in your network, right? सो फ्लड मीन्स अगर मान लिया कि आपके इस नेटवर्क में लाखों रिक्वेस्ट आने लगा, है ना, बहुत सारे तरीके से मैसेज आने लगे, तो क्या होगा? आप कह दो कि नहीं भाई, 1 सेकंड में मैं 10,000 लोगों को नहीं, सिर्फ 10 लोगों से बात करूँ, 10 लोगों का मैसेज रिसीव करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सो यू कैन कन्फिगर लाइक दैट। ओके, सो वी कैन कन्फिगर एक्सेस पोर्ट टू PC आर अनट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट। ओके, but add rate limit to reduce DSCP flood risk. So we can configure rate limit for PC. Okay. So how to configure rate limit? You can configure rate limit for E0/2 or E0/3. Okay. So what is the process? So I'm going to configure.
the things on switch 3, like how to configure rate limit. So you can configure interface, exit, interface, range, E0 slash 1 to what? E0 slash 2 to 3. Done. Okay, 2 to 3. And then IP DSCP snooping limit rate. You can assign rate in between 1 to 2048. Okay, so I'm going to assign 10. 10 means this is the rate limit for PC1 एंड PC2। तो PC1 and 2 क्या कर सकते हैं, इसी रेट लिमिट पर काम करेंगे। सेम थिंग यू कैन अप्लाई और यू कैन कॉन्फ़िगर रेट लिमिट फॉर स्विच 4। ओके, दूसरे स्विच पर भी आप यही करोगे। ओके, इसका मतलब ये होता है कि द 10 इज अ पैकेट्स पर सेकेंड tune to your needs. You can tune as per your need, means if you want to allow 20 packets or more than that, okay, for DSCP, so you can allow. But I have done with 10 packet per second. Okay, प्रति सेकेंड के हिसाब से ये चीज़ कॉन्फ़िगर करी गई है। सो यू कैन मैनेज एज पर योर नीड। ओके, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट वीलैन और सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब हाउ टू ट्रबल शूट। आप कंपनी के अंदर आप जाते हो, काम करते हो, आप कैसे पता करोगे कि हमारा डीएससीपी स्नूपिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डीएससीपी स्नूपिंग चल रहा है तो किस वी लाइन पर चल रहा है। डीएससीपी स्नूपिंग की कोई बाइंडिंग की गई है, बाइंडिंग भी होता है। ओके, बट बाइंडिंग इज पॉसिबल थ्रू डेटाबेस। ओके, बाइंडिंग क्या होता है, डेटाबेस पर पॉसिबल होता है। और आई थिंक इसके लिए अगर हम लोग देखें DIR एंटर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक तरीके का हम्म, यहाँ पर हमारे पास है नेट मैप, ये NVRAM एंड शो स्पेस फ्लैश। मल्टीपल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। So we have only DIR and there is no flash uh, in this software. So in real environment we can configure these all things. Okay. So मैं अगर यहाँ पर show space startup configuration enter, yes there is flash. Okay. So show space, okay wait, लेट मी ट्रबल शूट। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रबल शूट करा देता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो, ये कमांड रिक्वेस्ट गलत हो गया। अगर ऐसा कभी आपको बार बार देखने को मिल रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। सिंपल एक कमांड है, नो IP लुकअप डोमेन, आप ऐसा कमांड एग्जीक्यूट कर लो। फिर इन केस ये जो टाइम है ना, आपको इतनी देर वेट नहीं करना पड़ेगा। जो लुकअप का प्रोसेस है वो गलत कमांड पर भी डोमेन लुकअप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं करा देता हूँ, अब यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल कॉन्फ टी नो IP डोमेन लुकअप एंटर। अब आप यहाँ पर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सो स्पेस, अब मैं वेरिफिकेशन करा देता हूँ, IP स्पेस DSCP एंड स्नूपिंग एंटर। सो यू कैन सी ईथरनेट 0 पर हमारा अवेलेबल है। और हम रेट लिमिट भी यहाँ पर देख सकते हैं, देर इज ओनली 10 रेट लिमिट। ओके, फॉर 2 and 3 नंबर पोर्ट, राइट। और ट्रस्टेड है कि नहीं है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा पोर्ट ट्रस्टेड में और कौन सा पोर्ट अनट्रस्टेड में है। क्लियर है। सो अगर मैं इस वाले स्विच पर आता हूँ और सेम कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता हूँ, लाइक इनेबल एंड सो स्पेस
IP DSCP snooping and enter. So you can see एक अपडेट जस्ट हमारे पास है E0/0 जो कि हमारा क्या है, ट्रस्टेड में है। बाकी E0/1 हमारा ट्रस्टेड में नहीं है, उस पर अवेलेबल भी है। ओके। तो जिस पोर्ट को ट्रस्टेड में, क्योंकि स्विच हमारा क्या करता है बाय डिफॉल्ट DSCP स्नूपिंग के साथ सभी को अनट्रस्टेड में डाल देता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं एज पर DSCP स्नूपिंग VLAN 1 का डेटा क्या है। DSCP स्नूपिंग VLAN 1 नो, शो IP DSCP स्नूपिंग ओनली वी कैन चेक बाइंडिंग्स, किसको किसको IP मिल चुकी है उसके अकॉर्डिंग अपडेट ये देगा। एंड डेटाबेस, यू कैन चेक डेटाबेस। सो दीज आर द डेटाबेस। एंड अगर मान लिया कि मुझे इंटरफेस का ब्रीफ चेक करना है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। और इन केस अगर मुझे स्नूपिंग के पैकेट्स जो हैं, जैसे अब हम रियल इन्वायरमेंट में तो ऐसे क्लिक करके मॉनिटर नहीं कर लेंगे, तो वी कैन इनेबल डीबग। ओके। एंड debug IP DSCP and snooping एंड इवेंट्स और पैकेट्स, ओनली पैकेट्स को आप डिबग कर दो। तो जो भी हमारे DSCP स्नूपिंग के पैकेट्स होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। और इसको अगर अनडिबग करना है, हटाना है, तो जस्ट आप नो लिख कर एंटर कर दो, डिबगिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके इसको चेक कर सकते हो। ओके। तो मैं एक ब्रीफ समरी आपको दे देता हूँ, एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि DSCP स्नूपिंग में हम लोगों ने क्या किया। हमारा जो R1 है एक ट्रस्टेड DSCP सर्वर है और ये R2 अनट्रस्टेड है। तो हमारे अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं तो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो अनट्रस्टेड से अगर मिल जाएगा तो हमारा जो भी क्लाइंट है वो हमारे नेटवर्क के जो रग DSCP सर्वर, मतलब इस रग DSCP सर्वर से IP मिल जाएगा, तो ये आसानी से वो यूज़र का पूरा ट्रैफिक मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे अटैक्स से बचने के लिए या ARP स्पूफिंग से या DSCP पॉइजनिंग, रूट पॉइजनिंग, वॉटेवर, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर DSCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। और DSCP स्नूपिंग सभी पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट अनट्रस्टेड पोर्ट में डाल देता है, कहता है कि नहीं, किसी भी पोर्ट से सभी पोर्ट को अनट्रस्टेड में डाल देगा और बोलेगा कि किसी से IP नहीं लेना है, किसी को आई मतलब ना इससे लेगा ना इससे लेगा। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, IP DSCP स्नूपिंग, जैसे इंटरफेस ले लिया, इस वाले पोर्ट को हम बोल देंगे E0/0 IP DSCP स्नूपिंग ट्रस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई DSCP पैकेट आ रहा है तो इस वाले पोर्ट पर ट्रस्ट किया गया है और इसके थ्रू यहाँ पर भेजा जाएगा, बाकी इधर भेजा जाएगा। और इस पोर्ट को हम अनट्रस्टेड में ही रहने देंगे स्नूपिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो इसको रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी। इससे यहाँ पर अगर DSCP चल भी रहा है तो IP इनको 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 इसी सर्वर से मिलेगा, मतलब इसी राउटर से मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा। ओके। तो इससे हम पूरा का पूरा DSCP लेवल का इन्वायरमेंट सिक्योर कर सकते हैं। हो सकता हो कि हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा कनेक्शन हो, कोई ऐसा लिंक हो जहाँ से अनवांटेड DSCP रिक्वेस्ट करी जा सकती हो, है ना, कुछ भी ऐसा है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ऐसा ओके।